Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is unit number 4, Food, Nutrition and Health. Topics which we are going to cover in this session are introduction about food, nutrients and how they are related to health. Second is what is food, functions of food, what are the nutrition and nutrients, nutrients requirement क्या है और relationship between food, nutrition and health. So coming towards the first topic, that is introduction about the unit. So let's know what food exactly is. Food plays an important role in our lives and it closely associated with our existence. It is probably one of the most important needs of our life. जितनी हमें ज़रूरत होती है, हम खाने के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं. फूड हमारे छोटे छोटे यूनिट से बना होता है जो कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम सारा दिन काम करते हैं. These are required in various amount in different parts of the body, ताकि हम अपने स्पेसिफिक फंक्शंस, बॉडी पार्ट्स अपने स्पेसिफिक फंक्शंस जो है उनको सही ढंग से परफॉर्म कर सके. This means that good nutrition is essential for good health. इसका मतलब हमारी हेल्दी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है ताकि हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके. Now what food exactly is? Vegetables, fruits, pulses, bread, butter, milk, ये सब मिलके हमारा फूड बनाते हैं. Now the food refers to anything that we eat and which nourishes our body. Food ऐसी चीज है जो हम खाते हैं और वो हमारी बॉडी को एनर्जाइज करती है, हमारी बॉडी को नरिश करती है. It includes solids, semi-solids as well as liquid diets. Now the two important features for any item to be called food are, first is it should be worth eating, that is it should be edible. Second is it must nourish the body. फूड के मेन फीचर्स क्या है? ऐसी चीज जो हम खा सकें, जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, एंड सेकेंड इज जो हमें एनर्जाइज कर सके, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके ताकि हम अपने मल्टीपल बॉडी फंक्शंस जो है उनको एक्टिवली परफॉर्म कर सकें. Now the main functions of the food are, there are three basic functions. First one is the social function. Food and eating have significant social meaning. कोई भी occasions होते हैं, आपकी बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, किसी की मैरिज है, हम सबको फूड पे, लंच पे, डिनर पे इनवाइट करते हैं. So it has the social function of getting people interactive, made them interactive, or it provides the place where people can interact with one another. Second is the psychological function. Psychological functions क्या है? We all have emotional needs such as need for security, love and affection. Now food is the one way through which these needs are satisfied. For example, अगर घर पे मम्मा बहुत अच्छा सा खाना बनाती है, हमारा फेवरेट फूड बनाती है, so what does that mean? कि हमारी मदर हमारे लिए बहुत केयर करती है. She loves us. Now food is often served as reward also. Generally घर पे या कोई अगर हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारी एक्टिविटीज को फूड के साथ लिंक किया जाता है. से इफ यू विल परफॉर्म द टास्क, वी विल प्रोवाइड अ चॉकलेट फॉर यू. अगर यूजुअली अगर एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे बच्चे को कन्विंस करने के लिए हम यही कहते हैं कि बेटा अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, वी विल प्रोवाइड यू अ बिग चॉकलेट. सो मोटिवेट हो जाता है बच्चा एक फूड आइटम के थ्रू, राइट, और वो अपना टास्क इफेक्टिवली कंप्लीट करता है. सो फूड इज ऑफन सर्व्ड एज अ रिवॉर्ड. नेक्स्ट आर द साइकोलॉजिकल फंक्शन. तीन तरह के साइकोलॉजिकल फंक्शंस एक फूड परफॉर्म करता है. फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स एनर्जी. सेकेंड इज इट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग. Third is it regulates body processes and provide protection against
diseases. So food 3 functions, psychological functions क्या परफॉर्म करता है? सबसे पहला हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, और तीसरा हमें डिजीजेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. Now the nutrition and nutrients. Nutrition क्या है? It is the process by which food is taken in and utilized by the body. Now हम सब लोग खाना खाते हैं, अपनी बॉडी को नरिश करते हैं, किस लिए? जस्ट टू स्टे फिट एंड हेल्दी. सो हम कितनी तरह का फूड खाते हैं? हम मल्टीपल फूड आइटम्स खाते हैं, दाल चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल और राइस खाते हैं, हम पानी पीते हैं, जूसेस लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इन चीजों को डाइजेस्ट करती है, हमारे वेरियस पार्ट्स तक इनकी एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स इफेक्टिवली वर्क कर सके, और जो एनर्जी फूड प्रोवाइड कर रहा है उसके थ्रू प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. Nutrients are the chemical substances present in food and are responsible for nourishing the body. Nutrients जो है ये chemicals हैं जो फूड आइटम्स में या फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में जाके मल्टीपल फॉर्म ऑफ requirements को fulfill करते हैं. Now the nutrients are of 2 types. First is macronutrients and second is micronutrients. Now the macronutrients these are present in large quantities in food and are also required in large amount of body. Macro अपने आप बताता है बहुत ज्यादा, जो कि हमारे macronutrients क्या है? ऐसे nutrients जो कि हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए और उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स. These all are the micronutrients. So let us discuss all these in details. First one is the carbohydrates. So main function क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? First is it provide energy. कार्बोहाइड्रेट्स एक मेन सोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने का. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शन. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स को सपोर्ट करते हैं जो कि हमारे बॉडी के बिल्डिंग फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म करें. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्टूल को भी प्रॉपर बनाते हैं ताकि उसमें कोई डिफिकेशन ना हो. मेन कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से अवेलेबल है? Carbohydrates we can get from starch in cereals, legumes, pulses, potatoes. These are present as simple carbohydrates in sugar, jaggery, fruit, honey and milk. Starch and sugar are easily digested and provide energy to the body. Next are the proteins. Proteins are needed in the body for बॉडी बिल्डिंग. मेन फंक्शंस क्या है प्रोटीन के? ग्रोथ, मेंटेनेंस और टिश्यू रिपेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, हेमोग्लोबिन डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स. और प्रोटीन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में. जब हमें चोट लग जाती है, ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो ब्लड क्लॉट्स डेवलप करने में, उसको रोकने में, ब्लीडिंग रोकने में प्रोटीन हेल्प करता है. प्रोवाइड एनर्जी इफ नेसेसरी. प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. मेन सोर्सेस क्या है प्रोटीन के? दीज आर फॉर नॉन वेजिटेरियंस द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स एटसेट्रा. बट वेजिटेरियंस के लिए रिच सोर्स है मिल्क, चीज, पनीर, कर्ड. दीज आर ऑल आर द मिल्क आइटम्स. सोयाबीन्स, peas, pulses, cereal, nut and oil seeds like till, groundnut. These are the main sources of protein. Second are fats and oils. Fats and oils are concentrated source of energy in our diet.
हमारी फैट्स इनटेक जो है बहुत ज्यादा होगी तब भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बहुत कम होगी तब भी हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है. सो कैन यू इमेजिन 1 ग्राम फैट हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट्स बहुत छोटे छोटे फैटी एसिड्स को कंबाइन करने से बनता है और फैट का नेचर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के फैटी एसिड्स जो हैं उस पर्टिकुलर फैट में प्रेजेंट हैं, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो कि सॉलिड फैट्स में पाए जाते हैं, जबकि जितने भी हमारे लिक्विड ऑयल्स हैं, सेमी लिक्विड ऑयल्स हैं, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. वेजिटेबल ऑयल आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. डालडा, रिफाइंड, इन सब में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ ऑयल एंड फैट्स आर, फर्स्ट इज प्रोवाइड कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें fats also act as a multiple source of energy. Second is reduce the use of proteins in energy. प्रोटीन के यूजेज को रिड्यूस करता है. Carry fat soluble vitamins into the body and help in the absorption of these vitamins. जितने भी फैटी एसिड्स हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के को ऑब्जर्व, फैट सॉल्युबल है, वो फैटी एसिड के साथ कंबाइन होते हैं और फैट्स जो है इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. अगेन द नेक्स्ट वन इज हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. द लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन हेल्प टू कंजर्व बॉडी हीट. हमारी स्किन के नीचे जो लेयर है, दैट लेयर इज ऑफ फैट. ये लेयर हमारी स्किन की बॉडी टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करती है. इट एक्ट एज अ कुशन टू सर्टेन वाइटल ऑर्गन्स. हमारे फैट्स जो है कुछ वाइटल ऑर्गन्स के लिए एज अ कुशन का काम करते हैं, सो दैट वी गेट आवर बॉडी पार्ट्स गेट प्रोटेक्टेड. हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज. Main sources of fats are, first one is the cooking oil, second is ghee, third is butter, oilseed and nuts, meat, poultry, fish, egg, whole milk and cheese. Next are the micronutrients. Micro means very small. ऐसे nutrients जिनकी requirement बहुत small amount में है, but again these are very essential for the growth and development of the body. Now these micronutrients are minerals and vitamins, and they are required in very small quantity. So let's discuss them in detail. First one is the vitamins. Vitamins, our body contains very little quantity of vitamins. The vitamins are of two types. First is fat soluble, that is A, D, E and K, and water soluble, that is B and C. So let's discuss all the vitamins in detail. So coming towards the first vitamin, that is vitamin A. What function does vitamin A perform? Essential for proper functioning of eyes. आइज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. इट इज नेसेसरी फॉर हेल्दी स्किन एंड लाइनिंग ऑफ नोज, माउथ, थ्रोट, आईज, ईयर्स, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स. सो इन सभी ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए का बॉडी में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. So main sources of vitamin A are liver, egg, fish, liver oil, milk and milk products, green leafy vegetable, yellow and orange fruits. Next is vitamin D. Main functions of vitamin D are, it is necessary for formation and maintenance of strong healthy teeth and bones. विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. सो अगर हेल्दी टीथ और स्ट्रॉन्ग बोन्स डेवलप करने हैं तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है. इट हेल्प्स इन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी. मेन यूटिलाइजेशन कहाँ होती है? विटामिन डी
हमें कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो विटामिन डी जो है हमें मिल्क, बटर, एग, लीवर, फिश लीवर ऑयल या हमें सनलाइट के एक्सपोजर से मिलती है। हम अपनी स्किन को अगर सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो उससे हमें विटामिन डी मिलती है। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी prevents destruction of certain substances in presence of oxygen, and we get vitamin E from cereals, pulses, vegetable oils, etc. Vitamin K, it is necessary for clotting of blood. ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज ब्लड फ्लो होके ब्लड लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मेन सोर्सेज क्या है विटामिन के? दीज आर formed in the intestine by bacteria normally present there. ये अपने आप फॉर्म होते हैं और या एक्सटर्नल जो इनटेक है वो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग या लीवर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 तरह के बी विटामिन हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? नेसेसरी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन बॉडी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शंस के लिए, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए हम बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, और हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें बी कॉम्प्लेक्स की इंटेक जो है वो बहुत जरूरी बन जाती है। मेन सोर्सेस क्या है विटामिन बी के? ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियंस के लिए लीवर, पोल्ट्री, मीट, फिश, egg, etc. These are very rich source of vitamin B. Whereas vegetarians के लिए green leafy vegetable, milk, cereal और pulses जो है वो बहुत important है और rich source है vitamin K के लिए। Now vitamin C, it is water soluble and it performs a lot of function. It helps for the sustenance that hold cells together. सेल्स को कंबाइन करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको इकट्ठा मर्ज करने के लिए विटामिन सी की बहुत जरूरत है। नए सेल्स के प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग टीथ और बोन्स बनाने के लिए विटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। नाउ द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आर citrus fruits like amla, orange, lemon, guava, etc. Green leafy vegetables like spinach, cabbage, they are rich source of vitamin C. Sprouted pulses such as gram, dal, etc. They are again rich source of proteins as well as rich source of vitamin C. Coming towards the minerals. Minerals constitute a very small amount in the total body tissues. In total, there are about 19 minerals required by the body in various amount. These are calcium, iron, iodine, etc. So, calcium is necessary for the bone formation, blood clotting and muscle contraction. Calcium की requirement bone formation. यूजली हम बॉर्नविटा की ऐड देखते हैं दैट कैल्शियम इज एसेंशियल। कैल्शियम हमें मिल्क से मिल तो रहा है, लेकिन क्या हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है? उसके लिए विटामिन डी होना बहुत जरूरी है, तो हम उसमें बॉर्नविटा मिक्स करके पीते हैं। सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, बट यस इट्स ट्रू दैट कैल्शियम इज एसेंशियल एंड नेसेसरी फॉर बोन फॉर्मेशन। आयरन इज एसेंशियल फॉर ब्लड फॉर्मेशन। जितने भी ब्लड सेल्स हैं हमारे आयरन के थ्रू ही बनते हैं। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो आयोडीन का सिर्फ एक ही सोर्स है हमारी डाइट में, दैट इज मेक अ हैबिट ऑफ ईटिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट इन योर डाइट। नेक्स्ट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट इज वाटर। पानी और पानी के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। सो वाटर इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। इट फॉर्म्स अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडी वेट।
नाउ इमेजिन 2/3, कितना लार्ज अमाउंट। हम किससे बने? हम पानी से बने, बिकॉज हमारा टोटल वेट में से 2/3 वेट क्या है? पानी है। We can do without food more readily than water. हम खाने के बिना 2 दिन जी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 1 दिन भी नहीं जी सकते। क्यों? बिकॉज हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स जो है, ये सब वाटर से सराउंडेड है। Water helps in digestion, absorption and transportation of nutrients in the body. So one should drink 6 to 8 glasses of water every day. The nutrient requirements. Nutrient requirements जो है हमारी weight, age, height, gender, climatic condition, occupation, psychological conditions, इन सबसे वेरी करती है। एज वाइज हमारी डाइट चेंज होती है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। अगेन हाइट एंड वेट वाइज भी हमारी डाइट चेंज होती है। जेंडर, मेल और फीमेल दोनों की डाइट में बहुत डिफरेंस है। क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हमें प्यास बहुत लगती है, भूख कम लगती है। ठंड होगी, हम पानी कम पिएंगे। सर्दियों में यूजुअली हमारे वाटर इनटेक जो है बॉडी का बहुत कम हो जाता है, बिकॉज वाटर जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है, डिस्चार्ज नहीं होता है। हेल्थ वाइज हेल्दी पर्सन को भूख बहुत ज्यादा लगती है। सो हेल्दी पर्सन ईट्स अ लॉट। ऑक्यूपेशन, अगर हम फ्री हैं, खाली बैठेंगे तो हमारा पेट भी बहुत जल्दी खाली हो जाता है, उसको भूख लगती है। तो हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। अगेन साइकोलॉजिकल कंडीशंस। नेक्स्ट इज interrelationship of food, nutrition and health. The health of a person depends on the type and quantity of foodstuff consumed. Good nutrition is essential for a person to grow and develop normally and to remain healthy throughout life. एक proper nutritious diet जो है वो किसी भी individual के लिए बहुत ज्यादा important है, so that वो एक healthy life sustain कर सके। Now, when a person does not eat proper food, there are chances of the body not developing normally. There are chances that some organ of the body may start malfunctioning, or there may be some disease. So, poor nutrition may also influence the mental and the social well-being adversely. Now, in the last, there are a few questions which are based on this session. First question is, list the food items you had for dinner and identify the energy giving, the body building foods. Second question is, define macronutrients and micronutrients. Fourth is, what are the main functions of carbohydrates and proteins? Also list down their main sources. What are the nutritional requirements of your body, family members for the same or different? Give reasons again. So that's all for this session. Thank you. Happy learning. We learning.